ذوالقرنین تاریخ کی ایک انتہائی پراسرار اور قابل ذکر شخصیت ہے۔ باوجود اس کے کہ وہ ایک بادشاہ تھے، قرآن کریم میں ان کا ذکر ایک غیر معمولی شخصیت کے طور پر کیا گیا ہے۔ اللہ نے انہیں ایک عظیم سلطنت عطا کی تھی اور انہیں ایک خاص قوم سے سامنا کروایا جسے اجوج ماجوج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے قریب یہ قوم دوبارہ ظاہر ہوگی۔ آج کے دور میں بعض مذہبی اسکالرز نے ذوالقرنین کے حوالے سے انٹرگلیکٹک ٹریول یعنی آسمانوں میں سفر کے نظریات کو فروغ دینے کی کوشش کی ہے، جو ایک بڑی غلط فہمی اور اسلامی تعلیمات کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ ذوالقرنین کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ الکہف میں کیا گیا ہے، جہاں آیات 83 سے 98 تک ان کے مختلف زمینی سفر کی تفصیل دی گئی ہے۔ ان کے 3 اہم سفرات کا ذکر ملتا ہے، ایک مشرق کی طرف، ایک مغرب کی طرف اور ایک شمال کی طرف، جہاں انہوں نے ایک دیوار بھی بنائی جس کا تعلق آجوج ماجوج کی قوم کو قید کرنے سے ہے۔ سورۃ الکہف کی یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں جب کچھ عرب لوگ ایک یہودی عالم کے پاس گئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کے لیے کوئی سوال معلوم کرے۔ اس یہودی عالم نے ان سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کرے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ وہ شخصیت کون تھی جو زمین کے 3 کونوں تک گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سوال کے جواب میں سورۃ الکہف کی آیات نازل کیں جن میں ذوالقرنین کے سفرت کا ذکر اس قدر وضاحت سے کیا گیا ہے کہ یہ واقعہ بالکل آنکھوں دیکھا محسوس ہوتا ہے۔ ذوالقرنین کا یہ سفر خاص طور پر آجوج ماجوج کی قوم سے متعلق تھا، جنہیں انہوں نے ایک دیوار کے پیچھے قید کیا تھا۔ یہودی ذوالقرنین کو اپنا محسن مانتے ہیں کیونکہ پہلی مرتبہ ہیکل سلیمانی کی تباہی کے بعد جب بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ہزاروں یہودیوں کو قتل کیا اور لاکھوں کو غلام بنا کر بابل لے گیا، تو ذوالقرنین ہی وہ شخص تھے جنہوں نے بخت نصر پر حملہ کیا اور اسے شکست دے کر یہودیوں کو ان کا وطن فلسطین اور یروشلم واپس دلوایا۔ اسی لیے یہودی عالم کو امید تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے سے واقف نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ علم صرف چند یہودی علماء کے پاس موجود تھا اور تورات کے مخصوص نصوص میں پایا جاتا تھا۔ لہٰذا یہودی عالم کو یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے، کیونکہ اس علم کو مخصوص یہودی ربی جانتے تھے۔ تاہم سورۃ الکہف کی آیت 83 میں اللہ تعالیٰ نے خود ذوالقرنین کا نام بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے محمد، لوگ اب سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا 3 کونوں کا سفر تفصیل سے بیان کیا جو کہ یہودی عالم کے سوال کے عین مطابق تھا۔ ان سفرات کی تفصیل ہم ویڈیو میں آگے جا کر دیکھیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو ایک عظیم بادشاہ اور نیک حکمران کے طور پر بیان کیا ہے، لیکن ایک بات جو خاص طور پر قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ قرآن ان کی شخصیت کو پراسرار رکھتا ہے۔ یہ واضح نہیں کیا گیا کہ وہ نبی تھے یا پھر صرف ایک دنیاوی بادشاہ۔ ان کا سفر کس نوعیت کا تھا؟ کیا یہ دنیاوی فتوحات کی طرف تھا یا کسی اور مقصد کی طرف؟ قرآن میں صرف ان کی سمتوں اور علاقوں کا ذکر ملتا ہے جن کی طرف انہوں نے سفر کیا۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب ذوالقرنین کا مقبرہ کھولا گیا تو وہاں سے 3 سنگوں والا ایک مجسمہ دریافت ہوا جس پر دنیا کے 3 حصے واضح طور پر کندہ تھے۔ یہ نقشہ ان کے 3 زمینی سفرے کی نشاندہی کرتا ہے جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں۔ ذوالقرنین کی شخصیت کو پراسرار بنانے کی ایک بڑی وجہ قرآن کریم میں ان کی غیر معمولی طاقت، اللہ کی طرف سے ملنے والی ہدایت اور ان کے سفرات کی تفصیل ہے۔ اللہ کی طرف سے انہیں ہدایت ملنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اللہ کے کسی خاص مقصد کے تحت کام کر رہے تھے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ ذوالقرنین نبی تھے کیونکہ ایک غیر نبی اللہ تعالیٰ سے براہ راست حکم نہیں لے سکتا۔ تاہم اگر ان کے زمانے میں کوئی نبی موجود تھا جس نے ذوالقرنین کو اللہ کا پیغام پہنچایا تو قرآن اس کو ضرور بیان کرتا۔ لہٰذا یہ امکان بھی ہے کہ وہ نبی تھے اور ساتھ ساتھ ایک دنیاوی بادشاہ بھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین میں اقتدار اور حکمت دی اور ان کے لیے فتوحات کا دروازہ کھولا۔ وہ اپنی عظیم سلطنت کو چھوڑ کر دنیا کے مشرق، مغرب اور شمال تک گئے جہاں انہوں نے عدل و انصاف کا نظام قائم کیا۔ اسی لیے ان کا کردار عام بادشاہوں سے بلند تر ہے کیونکہ وہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے تھے اور دنیا میں عدل و انصاف قائم کرتے تھے۔ ذوالقرنین کا ذکر قرآن کریم میں عام بادشاہوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ انہیں اللہ کی خاص ہدایت یافتہ شخصیت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔
मशहूर आलम मौलाना अबुल कलाम आजाद के मुताबिक जुल्करनैन 580 कब्ल मसीह में पैदा होने वाले ईरानी बादशाह थे, जिन्हें तारीख में कोर्स कबीर के नाम से जाना जाता है। उनका लक़ब ओ जुल्करनैन यानी दो सुंगों वाला था। मौलाना अबुल कलाम आजाद के मुताबिक जुल्करनैन का पहला सफर मौजूदा ईरान, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के इलाकों की तरफ हुआ, जिन्हें उन्होंने फतह किया। उनका दूसरा सफर अर्मीनिया और तुर्की के इलाकों की तरफ था, जबकि उनका तीसरा सफर इराक की जानिब था, जहां उन्होंने बाबुल के बादशाह बख्त नसर को शिकस्त दी। जहां पर उन्होंने बनी इसराइल यानी यहूदी कौम को बख्त नसर की कैद से आजाद करवाया। वहां आम तौर पर जंगों में सिर्फ कत्ल व गारत और तबाही होती थी, लेकिन जुल्करनैन की फतूहात एक अलग मिसाल पेश करती है। ये जानना बहुत अहम है कि जुल्करनैन ने अपनी तमाम मुहिम्मात के दौरान निहायत रहमदिली और नरमी का मुजाहरा किया। कत्ल व गारत, लूट मार की बजाय वो लोगों को अमान देते चले गए। इसी रहमदिली की वजह से उनकी फौज भी उनके साथ चलती रही और फतूहात हासिल करती रही। बाबुल पर कब्जे के बाद जुल्करनैन ने अपना मशहूर ज़माना फरमान जारी किया, जो कि आने वाली नस्लों के लिए पहला कानून बना। याद रहे कि यह वाक़या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 586 साल पहले का है। आज भी इस फरमान की कापी अक़वाम मुत्तहिदा की असेंबली, ब्रिटिश म्यूजियम और ईरानी पार्लियामेंट में मौजूद है। सूरत अल-कहफ में जुल्करनैन के सफर का जिक्र आता है कि वो एक खास रास्ते पर चले जो एक जानिब को जाता था, यहाँ तक कि वो सूरज के डूबने की जगह पहुँच गए। इस मकाम को ईरान के मगरिब में मौजूद अर्मीनिया और आज़रबाईजान का इलाका कहा जाता है, जहाँ आज भी ये इलाके मौजूद हैं। कुरान में बयान किया गया है कि जुल्करनैन ने वहां सूरज को एक कीचड़नुमा चश्मे में गुरूब होता देखा। इस मकाम पर एक कौम आबाद थी और अल्लाह ताला ने जुल्करनैन को इख्तियार दिया कि चाहे तो वो इस कौम को छोड़ दें या उनके लिए कोई बेहतर रास्ता इख्तियार करे। सबसे हैरत की बात यह है कि आज भी अर्मीनिया के अंदर झेल सन्युआन वो मौजूद है, जो कि जुल्करनैन के सफर के दौरान इस मकाम पर पाई गई थी। कुरान की बयान करदा तफसील से ये बात मुताबिकत रखती है, क्योंकि झेल की रंगत कीचड़नुमा पानी की तरह काली है, जो कुरान ने बयान की गई खुसूसियात से मील खाती है। झेल सिवान अर्मीनिया के रकबे का तकरीबन 5% हिस्सा घेरे हुए है और इस बात की अलामत है कि इस वक्त वहां एक कौम आबाद थी। अल्लाह ने जुल्करनैन को इस कौम के साथ सलूक का इख्तियार दिया था, और चूंकि जुल्करनैन की तबीयत में नरमी और रहमदिली थी, इसलिए इम्कान है कि उन्होंने इस कौम के साथ नरमी का बर्ताव किया होगा और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया होगा, जैसा कि कुरान में भी जुल्करनैन की शख्सियत के हवाले से बयान किया गया है। इसके बाद कुरान बयान करता है कि जुल्करनैन सूरज के निकलने की जगह तक पहुंचा। वहां उन्हें एक ऐसी कौम मिली जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, हमने इसके लिए इसमें कोई और ओट नहीं बनाई थी, यानी ये लोग बगैर किसी कुदरती तहफ़्फ़ुज़ छुपने की जगह के थे। अब की बार जुल्करनैन का सफर अर्मीनिया से मशरिक की तरफ था, जो कि मौजूदा दौर का आज़रबाईजान बनता है। ये इलाका ज्यादातर खुश्क है क्योंकि यहाँ बारिशें कम होती है और उसके शुमाल में दागिस्तान का इलाका शुरू हो जाता है। इस इलाके के मगरिब में काफ का पहाड़ी सिलसिला मौजूद है, जो बहुत मशहूर है, और उसके मशरिक में बहर खिज़र, कैस्पियन सी मौजूद है। इसी इलाके में जुल्करनैन ने अज्जोज माज्जोज की कौम को पाया, जो कि अपने आसपास के इलाकों में तबाही मचाते थे और लोगों को परेशान करते थे। कुरान मजीद बयान करता है कि जुल्करनैन दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचा और वहां ऐसी कौम को पाया जो बात समझने के करीब ना थी। यानी ये एक कौम थी जो दो पहाड़ों के दरमियान आबाद थी और उनका रहन सहन ऊंचाई पर था। हैरत की बात यह है कि आज भी दरबंद के इलाके में एक किला मौजूद है जो इसी कौम से मंसूब किया जाता है। इस किले पर आज भी वो दीवार मौजूद है जिसे जुल्करनैन ने अज्जोज माज्जोज को रोकने के लिए बनाया था। कुरान बयान करता है कि वहां मौजूद लोगों ने जुल्करनैन से शिकायत की कि अज्जोज माज्जोज एक फसादी और जालिम कौम है जो ना किसी की बात सुनते हैं और ना ही किसी कानून को मानते हैं। इस कौम ने जुल्करनैन से दरखास्त की कि वो उनके और अज्जोज माज्जोज के दरमियान एक दीवार बना दें ताकि वो उनकी तबाहकारियों से महफूज रह सके। इसके एवज उन्होंने जुल्करनैन को माल और दौलत देने की पेशकश की। जुल्करनैन ने अपनी नरमी और हिकमत से काम लेते हुए इस पेशकश को कबूल नहीं किया, बल्कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अज्जोज माज्जोज को रोकने के लिए एक मजबूत दीवार तामीर की। ये दीवार उनके और अज्जोज माज्जोज के दरमियान एक रुकावट बन गई, जिसने इस कौम को इस जालिम गिरोह के जुल्म से महफूज किया।
ज़ुल्करनैन ने लोगों की दरखास्त पर उन्हें ये जवाब दिया कि अल्लाह ने जो कुछ मुझे अता किया है वही काफ़ी है और उन्हें माल और दौलत की ज़रूरत नहीं है। ताहम उन्होंने कहा कि अगर वो दीवार की तामीर में मेरी मदद करें तो मैं उनके और अज्जोज माजजोज के दरमियान एक मजबूत रुकावट बना सकता हूँ। इसके बाद ज़ुल्करनैन ने लोहे और तांबे को पिघलाकर एक दीवार तामीर की जो अज्जोज माजजोज को रोकने के लिए बनाई गई। ये कौम अज्जोज माजजोज एक इंसानी मगर वहशी और फसाद करने वाली मखलूक थी। उनका मामूल कत्लो गारत और लूट मार करना था। आज के दौर में बाज लोग अज्जोज माजजोज को गारों में छपी हुई कोई अजीब मखलूकीलीन या फिर कोई खौफनाक मोंस्टर के तौर पर पेश करते हैं। दरहकीकत वो कुरान के सियाक व सबाक से वाकिफ नहीं है और हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्मों से मुतासिर है। कुरान वाज़े निशानियों के साथ इस इलाके और उन लोगों की निशानदेही कर रहा है जो आज भी मौजूद है। ये लोग और कौम वही हैं जिन्हें ज़ुल्करनैन ने रोकने के लिए दीवार बनाई थी। कुर्ब क़यामत की इतनी बड़ी निशानी को तोड़ मरोड़ कर लोगों ने इसे किसी अजीब मखलूक आइलीन के साथ जोड़ दिया है जो कि बिल्कुल बेबुनियाद और गैर मंतकी है। बाज लोग ये तसव्वुर पेश करते हैं कि ज़ुल्करनैन ने किसी दूसरे सैयारे की तरफ आसमानी सफर किया और वहां पहुंचकर अज्जोज माजजोज को देखा और उनके और जमीन के दरमियान एक दीवार बना दी। लेकिन ये तसव्वुर कतई तौर पर कुरान के सियाक व सबाक के मुताबिक नहीं है और कोई मंतकी बुनियाद नहीं रखता। हकीकत यह है कि आज भी ये दीवार दरबंद के इलाके में मौजूद है, अपनी निशानियों के साथ बिल्कुल इसी हालत में जैसे कुरान ने बयान किया है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक, जिसके रावी हजरत अबू सईद खदरी रजी अल्लाह अन्हु है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला हजरत आदम अलैहि अस्सलाम से फरमाएंगे कि अपनी औलाद में से जन्नती और जहन्नुमियों को अलग करें। हर 1000 में से 999 जहन्नुमी होंगे जो कि अज्जोज माजजोज की नस्ल से होंगे, जबकि सिर्फ एक जन्नती होगा जो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से होगा। इस सही हदीस के बाद इस बहस की कोई गुंजाइश नहीं रहती कि अज्जोज माजजोज हजरत आदम अलैहि अस्सलाम की औलाद हैं, यानी वो इंसान ही है। क़यामत के दिन उनका हिसाब व किताब भी बाकी इंसानों के साथ ही होगा। कुरान मजीद में अज्जोज माजजोज को खास तौर पर एक गिरोह के तौर पर बयान किया गया है जो फसाद और तबाही फैलाने में मुलव्वस है। उनकी आइडियोलॉजी को एक ऐसी तबाहकुन सोच के तौर पर बयान किया गया है जो कि मुआशरती अमन और अदल के खिलाफ है। दूसरी तरफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अल्लाह का रसूल मानने वाली एक मुख्तलिफ और नेक उम्मत के तौर पर बयान किया गया है। उलमा किराम के मुताबिक अज्जोज माजजोज की कौम दरअसल हजरत नूह अलैहि अस्सलाम के तीसरे बेटे आफिस की नस्ल से है। उनका नाम उनके 2 सरदारों अज्जोज माजजोज के नाम पर रखा गया है। ईरानी तारीख में उन्हें इश्कनास के नाम से भी जाना जाता था और इश्कनास माजजोज का भांजा था। यह कौम क़फ़क़ाज़ की पहाड़ियों और कैस्पियन सी, बहर खिज़र के आसपास के इलाकों में आबाद थी। वो जनूबी इलाकों पर हमला करते, कत्ल गारत और लूट मार करते और लोगों को गुलाम बना लेते थे। उन गुलामों से काम करवाया जाता था और फिर उन्हें आगे फरोख्त कर दिया जाता था। ये कौम अपने इलाके से गुजरने वाले काफिलों से जबरदस्ती टैक्स भी लिया करती थी और जो लोग टैक्स देने से इनकार करते उन्हें कत्ल कर दिया जाता था। ये कौम खुद को ए कौम खिज़र कहती थी और इसी वजह से कैस्पियन सी को ई बहर खिज़र कहा जाता था। उनका इलाका मगरबी रूस से लेकर मौजूदा दौर के जर्मनी तक फैला हुआ था और इस पास के मौजूदा इलाके की कौमें उनसे बहुत ज्यादा तंग थीं। उन्होंने ज़ुल्करनैन से उनकी शिकायत की और दरख्वास्त की कि वो उनको माजजोज की शर से बचाएं। ज़ुल्करनैन ने उनके हमलों से रोकने के लिए 2 पहाड़ों के दरमियान एक दीवार बनाई जो आज भी कुछ मिस्मार हालत में अपनी असली जगह पर मौजूद है। ये दीवार लोहे और तांबे से बनाई गई थी और सबसे ज्यादा लोहा और तांबा इसके दरवाजों पर इस्तेमाल हुआ। दीवार के पत्थरों को इतना बुलंद किया गया था कि अज्जोज माजजोज इस पर चढ़ने या इसको नुकसान पहुंचाने के काबिल न थे। मजीद ये कि दीवार के साथ मौजूद किले की ऊंचाई पर हमेशा तीर अंदाज तैनात रहते थे ताकि वो उन हमला आवरों को रोक सकें। दीवार चीन के बाद ये दुनिया की दूसरी बड़ी दिफाई दीवार तस्वुर की जाती है। ज़ुल्करनैन की दीवार की तामीर के बाद अर्मीनिया और आज़रबाईजान का तमाम इलाका उनकी सल्तनत का हिस्सा बन गया और आजवज माजवज इस दीवार के पार महदूद हो गए। वक्त गुजरने के साथ ये दीवार मिस्मार होती गई और अज्जोज माजजोज की कौम दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल गई।
इसीलिए सही हदीस में बयान होता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अज्जोज माजजोज की दीवार में इतना बड़ा सराख हो चुका है कि अपने अपने अंगूठे और बराबर वाली उंगली से इतना बड़ा हल्का बनाया और फरमाया कि अरब के लोगों के लिए फितना का आगाज हो गया है, यानी दरबंद का वो कला दीवार मिस्मार हो गई है और उसका रास्ता अज्जोज माजजोज के लिए खिल गया है। ये कौम अरब के लोगों के लिए खास तौर पर फितना होगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में यह कौम खिज़र इस पास के इलाकों में फैल गई। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर में मुसलमान फौजें दरबंद के इलाके में जिहाद करती हुई पहुंची और उनसे जंग भी की। यहाँ मौजूद सहाबा किराम की कब्रें आज भी मौजूद हैं, जो कि इस बात की गवाही देती है। तारीख में कुस्तुनतुनिया के बादशाह के एक वजीर इज़्द का जिक्र मिलता है, जो ये जानना चाहता था कि बनी इसराइल के 12 कबीलों में से क्या किसी एक की सल्तनत दोबारा दुनिया में कहीं पर कायम हुई है। साल 944 के अंदर उसके एक सफीर ने बताया कि कुस्तुनतुनिया मौजूदा तुर्की से 15 दिन के समंदरी सफर पर एक रियासत कायम हुई है, जिसको कौम खिज़र कहा जाता है। ये लोग कुस्तुनतुनिया से तिजारत भी करते हैं और ये बहुत ही ताकतवर कौम है। वजीर ने इस खिज़र कबीले के बादशाह को खत लिखा और इससे पूछा कि वो कौम बनी इसराइल के किस कबीले से ताल्लुक रखते हैं। जवाब में खिज़र कौम के बादशाह ने कहा कि वो किसी भी कबीले से ताल्लुक नहीं रखते, बल्कि उनकी नस्ल नूह अलैहि अस्सलाम के बेटे औफ से आगे बढ़ी, जिन्हें तर्कों का बाप भी कहा जाता है। उनका कहना था कि हमारी कौम में एक बादशाह बुलान था, जिसने कुफर के निजाम से तंग आकर अपनी कौम समेत यहूदियत इख्तियार कर ली। ये बहुत हैरान कुन बात थी, क्योंकि यहूदियत ऐसा मजहब है जिसको इख्तियार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहूदी की औलाद ही यहूदी होती है। आज भी अगर आप गौर करें तो ये इश्क नाजी ज्यूज सफेद फाम है, जबकि असल यहूदी गंदुमी रंगत के हैं। दरअसल ये अश्कनाजी ज्यूज इसी बादशाह बुलान की नस्ल से हैं, जो कि असल यहूदी नहीं हैं, बल्कि पूरी यहूदियत पर काबिज हो चुके हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ये अरबों के लिए फितना बनकर अपने पास मौजूद तमाम अरब रियासतों को एक एक करके खत्म कर रहे हैं, जबकि असल यहूदी पूरी दुनिया में अपनी सजा की वजह से दरबदर है। असल यहूदी उन पर आवाज भी नहीं उठा सकते, लेकिन अक्सर आप मगरबी ममालिक में देखते होंगे कि असल बनी इसराइल के लोग अब फिर यहूदी लोग फलस्तीन में होने वाले अश्कनाजी ज्यूज के जुल्म के खिलाफ जितना मौका मिले एहतजाज करते रहते हैं। इसीलिए इन अश्कनाजी ज्यूज ने अपने लिए एक अलग रियासत इसराइल कायम की। अल्लाह ने अपने वादे के मुताबिक इस बनी इसराइल कौम की दोबारा हुकूमत कायम नहीं होने दी, जैसा कि बार बार उन्हें हुकूमत देकर अपनी लाडली कौम बनाकर आजमाया, लेकिन हर बार उन्होंने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की। लिहाजा आखिरकार बनी इसराइल कौम को ये सजा मिली कि उनसे लाडली उम्मत का टाइटल छीन कर ये हुकूमत अरबों को दे दी गई, जैसा कि कुरान करीम की सूरत अंबिया की आयत 95 में बयान होता है। जिस बस्ती को हमने हलाक कर दिया, इस पर लाजिम है कि वहाँ के लोग अब पलट कर नहीं आएंगे, यानी यरूशलेम की बस्ती, जो कि बनी इसराइल कौम का घर था। हैरत अंगेज तौर पर उसके बाद अगली आयत में बयान होता है कि यहाँ तक कि अज्जोज माजजोज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे। इन दोनों आयत की एक साथ मौजूदगी और उनके सियाक और सबाक को समझने की कोशिश करें कि अल्लाह फरमाता है कि तुम लोग कभी भी अपनी हुकूमत को दोबारा कायम नहीं कर सकोगे, लेकिन तुम्हारी जगह हम आजवज माजवज यानी इश्क नाजी ज्यूज को आजादी दे देंगे, उनको हुकूमत दे देंगे और वो हर बुलंदी से यानी कारोबार, मीडिया, सियासत हर जगह पर काबिज होंगे, आप फिर उनकी बुलंदियों पर मौजूद होंगे और मुसलमानों पर हमला करेंगे, क्योंकि मैदान जंग में ऊंची जगह को फतह की अलामत समझा जाता है और कुरान भी हमें यही समझाने की कोशिश कर रहा है। यानी असल यहूदी अब तक दुनिया में दरबदर हैं, जबकि अश्कनाजी ज्यूज के साथ ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक मुसलमानों की आखिरी जंग हर मजवन अभी होना बाकी है। क़यामत के दिन इसी अश्कनाजी ज्यूज की नस्ल इतनी बढ़ जाएगी कि उनमें से 99 जहन्नमी होंगे, जबकि रसूल अल्लाह की उम्मत का सिर्फ एक शख्स जहन्नम में जाएगा। ये कौम आज भी मजहबी, नफसियाती, जंगी और सिफारती हर तरह से लोगों के ईमान पर हमला आवर है और अपने मसीहा दज्जाल के इंतजार में है, जिसके साथ ये साथी के तौर पर मौजूद होंगे और उसकी मदद करेंगे। ये सब कुछ एक के बाद एक मुसलसल अहादीस से साबित है। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद ज़ुल्करनैन अलैहि अस्सलाम की शख्सियत के बारे में और अज्जोज माजजोज की तमाम कंफ्यूजन आपके दिमाग से दूर हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और उससे कुछ नया जानने को मिला तो इसे जरूर लाइक करें।
اب میں ملوں گا اب سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں. اب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں. شکریہ ویڈیو دیکھنے کا. اللہ حافظ.